और हम इधर से आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपने लिए लेके जाएँ, जो इश्यूज़ हम फेस करते हैं या जिन चीज़ों पे हम कभी-कभी सोचने लगते हैं कि हमें अब क्या करना है यहाँ पर? व्हाट इज़ द राइट वे? व्हाट इज़ द राइट पाथ टू carry on from here with adolescence? So we will be discussing all those, and at the end, then we can definitely have your questions or queries, या बीच में भी अगर हम कुछ एक stoppage ले सकते हैं, if you want, you can just request on message, and then we can take your questions in between. Yeah, interactive. I request all the participants turn on the video. So we are waiting for all the participants to please turn on the videos. Thank you. I am seeing a couple of them opening, but still many of them haven't. They're coming up. Okay, so I think many of them have already opened their cameras, and those who haven't, we request you once again to please kindly turn off the camera. It will be better and it will help us to make the session more interactive. So Jatin, should we start? Okay. Yes, ma'am, you should start. Okay, so I'll just share my screen. Share the screen. Sure. Is it visible? Yes, ma'am, it's visible. Visible. Thank you so We much. can see, ma'am. Perfect. Okay, so here we are on a training program of adolescent mental health promotion and the early identification, the intervention programs, and especially we are going to talk about the adolescents' life skills, how to promote the mental health among them, and the peer-led interventions. तो अगर हम अपनी शुरुआत करते हैं आज के सेशन में एडोलेसेंट पीयर एजुकेटर लीडरशिप इन मेंटल हेल्थ, तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ क्या है. व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ, इजंट इट? सो वुड एनीबडी लाइक टू शेयर हियर कि उनके अकॉर्डिंगली व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ? कोई शेयर करना चाहेगा? दे कैन अनम्यूट देमसेल्फ. क्या उनको जब हम मेंटल हेल्थ बोलते हैं तो क्या मीनिंग हुआ इसका? Anybody who would like to just come up and share their views? It is positive and negative. Excuse me, it is positive and negative attitude of a person. Okay, negative and positive attitude of a person. Okay, ठीक है. और कोई? Thank you so much. Anybody else? We can say that ma'am, a person who is very well in physical sense, mental, emotional, social, उसकी Yes, डीलिंग कैसी है औरों के साथ, वो खुद को कैसे हैंडल करता है, exactly. that Thank you. total includes Yes, under mental health. very good, very good. Thank you so much. So इन्होंने अभी जो बात बोली that कि how the person is actually coping up, हम कहेंगे, ठीक है? How the person is feeling, how the person is thinking, and how he is acting. तो हमारा अगर हम देखें, डेफिनेटली हमारा पूरा फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ कोरिलेटेड है कि नहीं? सो व्हेन वी आर थिंकिंग, व्हाट आर वी यूजिंग? दिस इज द पार्ट ऑफ माय मेंटल प्रैक्टिसेस, राइट? मेरा मेंटल एक्शन है जब मैं सोच रही हूँ, राइट?
So my mental think, the way I am thinking will automatically affect my behavior. मैं कैसे एक्ट करूंगी, है ना, मैं कैसे लोगों के साथ बातचीत करूंगी, मैं कैसे, अगर मेरे पास स्ट्रेस आया तो मैं कैसे उससे डील कर पाऊंगी. क्यों, आई मीन लाइक यू नो, इफ यू टॉक अबाउट एडोलेसेंट नाउ, सो एडोलेसेंट एक बहुत ही बड़ा ट्रांजिशन पीरियड होता है जहाँ पर द child, the adolescent, is actually facing lot of transitions and changes physically, biologically, emotionally. उनके अंदर एक बहुत सारे changes आ रहे हैं जो कि एक साथ हैंडल करना एक्चुअली अगर देखा जाए इज नॉट वेरी इजी. ओके, सो उनके अंदर कन्फ्लिक्ट्स आते हैं उस स्टेज पर कि मुझे क्या करना है. दे लुक फॉरवर्ड टू टॉक अबाउट इट, बट उनको प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते हैं. दे फील दैट दे आर केज्ड, अंदर से उनको ऐसा महसूस होता है बिकॉज वो अपना आपको ना ओपन नहीं कर पाते. मुझे किससे जाके बात करनी है उन्हें पता नहीं होता कई बार अधिकतर. एंड इवन इफ दे हैव अ वेरी गुड सर्कल, तो पियर्स का जो इन्फ्लुएंस रहता है वो उन्हें कई बार रोक देता है. पेरेंट्स कई बार बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, कई बार पेरेंट्स को अच्छे से उनको हैंडल भी कर लेते हैं. टीचर्स अपने एंड पर हैंडल कर पाती हैं, कई बार उनकी भी अपनी लिमिटेशंस हो जाती हैं. सो ऑल टुगेदर इफ यू सी, it's a very crucial age of development where the adolescent is actually facing lot of transitions, lot of things happening which are very crucial for him at this stage. ये एक learning stage भी है उनके लिए जहाँ वो इमोशनली अपने आप को डेवलप फील भी कर रहे होते हैं, उसे एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं और कंफ्यूज्ड भी रहते हैं. सो तभी आपने देखा होगा यू नो दैट दे आर, यू फाइंड देम वेरी रेबेलियस. वो अपने आंसर्स, आप उनसे कुछ पूछिए तो वो कभी कभी चिढ़ के जवाब देते हैं, इरिटेट हो जाते हैं छोटी छोटी बात पे, डिसरिस्पेक्टफुल भी हो जाते हैं कई बार. बट एक्चुअली वो सब चीज़ें जो हो रही है इट्स ऑल रिलेटेड टू द एंटायर डेवलपमेंटल प्रोसेस. जो बायोलॉजिकली वो लोग चेंजेस में जा रहे हैं, बॉडी चेंजेस हो रहे हैं या मेंटल लेवल पे चेंजेस हो रहे हैं, इमोशनल, तो वो सारी चीज़ें उस वजह से इफेक्ट होने लग जाती हैं. सो दैट इज़ वाई दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हाउ वी एज द टीम ऑफ एजुकेटर्स, बिकॉज सी इट्स अ कोलैबोरेशन, है ना. एक कोलैबोरेशन है जहाँ पर हम इंडिविजुअली एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होके नहीं कह सकते कि एक टीचर कहेगी कि हाँ मैं हेल्प करूँगी, दूसरी कहेगी मैं नहीं कर रही हूँ, या द मैनेजमेंट इज नॉट गिविंग इनफ सपोर्ट, या द फ्रेंड्स, the circle at school, they are sometimes giving sometimes not giving. So अगर हम सब लोग एक साथ कोलैबोरेट होकर के एक टीम बिल्डअप करते हैं एंड वी वर्क ऑन दिस very very important topic of adolescent mental health and well-being, I think we can really help the adolescents. And that is what brings up the topic of peer educator. Now what is a peer educator? Would anybody like to share their thoughts about, if we are talking about peer, चलो पहले peer ही discuss करते हैं. What is a peer? Anybody who would like to just share? मैम आपका फ्रेंड सर्कल. जी बिल्कुल, जिनके साथ आप बातचीत कर रहे हैं, आप उठ बैठ रहे हैं, वो हो सकते आपके हैं. क्लासमेट्स, राइट, आपके Right. क्लासमेट्स. है ना. अगर हम एडोलेसेंट की बात करें तो ऑब्वियसली मेजॉरिटी ऑफ देम आर एट स्कूल और कॉलेज लेवल्स, राइट. सो डेफिनेटली यहाँ पर हम अपने एज ग्रुप, अपने ग्रेड लेवल, अपने फ्रेंड सर्कल, चाहे वो मेरे स्कूल में है या मेरी कॉलोनी में है, मेरी सोसाइटी में है, तो हम पीयर की बात कर रहे हैं. नाउ व्हाई आर वी ब्रिंगिंग अप दिस टॉपिक ऑफ पीयर एजुकेशन? व्हाई नॉट वी एज अडल्ट्स हैंडल देम? दैट इज ऑल्सो वन क्वेश्चन अराइजेस टू अंडरस्टैंड कि ये क्या इम्पोर्टेंस है एक पीयर एजुकेटर की. तो हम नाउ आई वुड लाइक टू आस्क टू समबडी शेयर कि क्यों हम पीयर एजुकेटर को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं मेंटल हेल्थ में एडोलेसेंट की. मैम पीयर एजुकेशन से जो भी आपका जो फ्रेंड सर्कल है, आप उससे विदाउट एनी हेजिटेशन आप बात कर सकते हैं. एग्जैक्टली. इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, यू कैन आस्क ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक, राइट. जो शायद आप किसी से बात नहीं कर पाएंगे, ना अपने पेरेंट्स से और ना ही अपने टीचर से. तो पीयर्स के साथ आप बड़े फ्रेंकली बात कर सकते हैं, और एक जो माइंड का जो लेवल है जी. दोनों का वो लगभग सेम है. हम्म. तो अपने फ्रेंड सर्कल की बात को, अपने क्लासमेट्स को समझना वो ज्यादा इजी होता है रादर देन एक टीचर और पेरेंट्स के. बिकॉज कई बार क्या होता है कि टीचर सिर्फ लेक्चर देते हैं, जी.
उस लेवल तक आके, जैसे अगर अब मैं बात करूं कि कोई अगर पीएचडी किए हुए है टीचर और वो जी नर्सरी क्लास के बच्चे को पढ़ा देगा, इट इज नॉट पॉसिबल। एग्जैक्टली उसको नर्सरी के क्लास के साथ नर्सरी के बच्चे की तरह बिहेव करना पड़ेगा, तब वो उसको एबीसी सिखा पाएगा। राइट अगर वो सिर्फ लेक्चर देगा तो वो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो अपने दोस्तों के साथ बैठा है, तो जी जैसे हमने ड्रॉ करना है, कैसे हमें 1 बनाना है, 2 बनाना है, तो वो उसको देख देख के जो भी उनकी आपस की भाषा है वो कम्युनिकेट करेंगे और एक दूसरे को बेटर समझ पाएंगे। तो इसलिए पीयर एजुकेशन ज्यादा अच्छी है, राइट ज्यादा मतलब एग्जैक्ट हेल्पफुल है। अच्छी तो नहीं मैं बोलूंगी, अच्छी तो है ही है, बट बहुत हेल्पफुल है बहुत बच्चे के हेल्पफुल लिए कि उसके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। exactly thank you so much for sharing such wonderful details about this. इतने अच्छी तरीके से आपने इस चीज को समझाया कि यस पीयर एजुकेटर क्यों क्यों है हमें जरूरत पीयर एजुकेटर की एज अ लीडर व्हाई इन द मेंटल हेल्थ फील्ड फॉर एडोलेसेंस is जैसे मैम ने अभी शेयर किया that the person who is sharing at the same age group feels more comfortable. अगर हम भी as an adult if you think I राइट, have a problem today or you have a problem today, you would be more comfortable sharing मोर it with the विद आवर same of the फ्रेंड्स, same age group, isn't it? You will be more सेम एज, comfortable. एग्जैक्टली, You will be able to एग्जैक्टली, understand कि हाँ वो मुझे ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा, right? राइट राइट Same राइट, goes with the children, right? They are also very much comfortable with their age group. जब वो message, जब वो information, जब वो guidance और support एक same age group से आती है from their own peer, from the known circle, it is definitely more influential, isn't it? Because like ma'am shared very beautifully, they are more comfortable. उनका एक कंफर्ट जोन होता है, उन्हें नहीं लगता कि वो मुझे जज कर रहा होगा, उसे करेक्ट, नहीं लगेगा कि वो मुझे डांट पिटेगी अभी मैंने कुछ गलती करी है ना? बिकॉज अगर टीचर के सामने अगर कोई मिस्टेक होती है या पेरेंट के आगे कुछ प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली एक बार को तो एक रेज्ड वॉइस आएगी ही आएगी, isn't it? So that stops them from expressing themselves very clearly and openly. तो I wouldn't say that they might feel it with everyone. हो सकता है there are certain teachers, there are certain seniors or their parents who make them very comfortable. But yes, if we see in majority, they definitely feel more comfortable with their own age groups. Now, if we see the highlights of the now since we have come into this topic of the entire peer education, सो पीयर एजुकेटर के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमारी जो हाईलाइट रहेंगी क्या होगा, इट विल बी अ वेल-बीइंग वेयर वी आर गोइंग टू प्रोवाइड through the peer educator the physical, the social, the environmental, economic, psychological support to that person who is in need or the child or the classmate of that person who is in need. तो अगर हम पूरा इस वर्किंग मॉडल को देखेंगे तो हमारा एम क्या रहेगा इसमें उसमें कि हम ऐसे पीयर एजुकेटर्स को लेके आए अपने स्कूल लेवल्स पर, उन्हें अपॉइंट करें, उन्हें नॉमिनेट करें और एक ऐसी मेथोडोलॉजी हम इस्तेमाल करें कि the peer educator is fully empowered, is fully equipped to help the person. Now, how can I think like अगर हम अपना स्कोप भी देखते हैं अपने न्यू एनईपी जो हमारा 2020 का है, the role of the student as stakeholder has been given a lot of importance, significant importance in the modern day education, है ना? Because education में क्या है? What is education? It is a creation basically, creation of choices है, making people aware about those choices and enabling them, है ना? हमें उन्हें enable करना है to make use of those choices and take the appropriate decisions. So अगर मेरे पास एक स्टेक होल्डर है, जैसे मैम ने भी शेयर किया और हम इस बात पे बात कर रहे हैं कि पीयर एजुकेटर के थ्रू हम इसे और भी इफेक्टिव बना सकते हैं, हम एक वॉइस, एक ओपिनियन ऑफ स्टूडेंट get that for a progressive world. I think the voice is echoing. I request all the participants to turn on the video. Right? So we will have a voice and an opinion of students as change makers. We can take their help, as मैम ने कहा कि important है, पर कैसे उनकी help लेकर के, right? We can take their help to make them as change makers. Is to be like एक progressive world होगा हमारा आने वाला time. So identifying and preventing mental health
concerns through the peer education and the help of the teachers and the counselors at school will be a beautiful way of helping children work on it. Now, if we are saying कि हमने अपना एम और हमारा जो इसका स्कोप है अभी हमने डिस्कस किया कि एक कैपेसिटी हम बिल्ड करते हैं, हम सीनियर स्टूडेंट्स की तरफ देखते हैं जो हमारे पीयर एजुकेटर्स हैं, राइट. नाउ अलोंग विद द स्कूल काउंसलर्स और 1 or 2 नोडल टीचर्स हम उन्हें नॉमिनेट कर सकते हैं, राइट. दीज ट्रेन्ड चिल्ड्रन और दीज ट्रेन्ड स्टेक होल्डर्स विल एक्ट एज स्कूल मास्टर्स trainer group, right, who will further arrange for the orientation programs karana for rest of the children who are also interested in volunteering for such programs अपने स्कूल में भी, अपने एनवायरनमेंट में, अपने आसपास के स्कूल्स में भी. सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी बिग स्टेप, राइट. नाउ स्कूल शैल कैसे हम उसे कर सकते हैं ना. सो नॉमिनेशन ऑफ पीयर एजुकेटर, अगर हम एक पीयर एजुकेटर की बात कर रहे हैं तो हम उसको कैसे एक इफेक्ट में लेके आ सकते हैं. तो स्कूल शैल नॉमिनेट 4 सीनियर स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो मे बी 9th और 11th आर द बेस्ट क्लासेस जहाँ से हम उनको अपॉइंट कर सकते हैं ना. एंड देन एक टीचर हो, द स्कूल काउंसलर, वेलनेस टीचर्स हो सकते हैं. दे ऑल टुगेदर कैन सपोर्ट, राइट. नाउ कुछ चीज़ें हमें ध्यान देनी होंगी जब हम एक पीयर एजुकेटर की बात कर रहे हैं. हमारा एजुकेशन सिस्टम एक्सपैंड हो रहा है, नई पॉलिसीज आ गई हैं, किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से चीज़ों को हमें प्रेजेंट करना है एट द टीचिंग लेवल, एट द एडमिन स्टाफ. सो पीयर एजुकेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस एंटायर थिंग, राइट. इसको भी ध्यान रख करके हमने एक वेल बीइंग का एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए स्कूल में we can make use of this and we can have masters of students being there helping their peers and work along with the teacher under their guidance. है ना. तो अब हमको ये जानना है कि भाई ये जो एडोलेसेंस हम बात कर रहे हैं, बार बार एडोलेसेंस बोल रहे हैं कि दे एक्वायर नॉलेज, वो लोग कैसे, हमें पहले थोड़ा सा ये भी समझना जरूरी है कि उनका क्या वे होता है. दे एक्वायर नॉलेज, एटीट्यूड्स, values, life skills and they benefit in various ways. तो उनका एक सीखने का जो तरीका है वो पहले जैसा एक बुकिश नहीं रह गया है कि सिर्फ किताब उठाई है, स्कूल जाना है, मतलब सिर्फ पढ़ना है. नहीं, उन्हें और भी कुछ लाइफ में सीखना है, isn't it? पहले एक लाइफ को एड्रेस करने का मुझे एटीट्यूड होना चाहिए मेरे अंदर वो वैल्यूज, मेरे अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए कि मुझे कैसे अपना जीवन बिताना है, मुझे कैसे लोगों से इंटरैक्ट करना है. पहले तो मुझे ये सीखना है ना. बुक्स, द नॉलेज दैट दे आर गिविंग, द एजुकेशन सिस्टम, डेफिनेटली दे आर चेंजिंग. व्हाई? दे आर चेंजिंग एज पर द नीड ऑफ द करंट जनरेशन. उनकी रिक्वायरमेंट्स और उनकी नीड अब चेंज्ड है, तो हमें उन्हें कैसे केटर करना है. सो वी हैव टू एक्चुअली एम्पावर आवर youth to deal with the situations, to know how to interact, to be more empathetic, to be more creative in their thinking, to be more problem solving skills होना उनके पास. कैसे अपने ही इमोशंस के साथ कोप करना है, कैसे अपने ही स्ट्रेस के साथ कोप करना है और कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व करना है. These are very important things. So the nomination of the peer educator, जिसे हम बोल रहे हैं कि हम एक peer educator team डेवलप करते हैं. So how can I do this now? So we have to ensure certain things. When I am actually nominating a peer and as an educator, I need to know what are his own skills. So over a period of time, as a teacher, as a counselor, as a school, I know, okay, this child is enthusiastic. He has commitment towards teamwork. उसकी ये quality होनी चाहिए, isn't it? And then उसकी communication skills कैसी हैं? Now, how empathetic is that person? Acha, here I would like to just quickly ask someone to explain me the word empathy. अगर मैं कहती हूँ कि मेरे अंदर एम्पैथी होनी चाहिए या एक पीयर एजुकेटर में एम्पैथी होनी चाहिए, so what does empathy mean? Anybody who would like to share? To put our feet in someone else's shoes, so feel the exactly thing what they are feeling. Exactly, right. That is what we can say empathy. Yeah, thank you. So I would just like to add on with what ma'am has said over here कि मुझे समझना है ना that how that person is feeling in that situation without being judgmental, isn't it?
मुझे समझना है कि उस पर्सन को क्या महसूस हो रहा है, वो क्या किस दौर से गुजर रहा है। ठीक है, मैंने मे बी आई हैवंट गॉन थ्रू दैट बट स्टिल आई कैन अंडरस्टैंड। तो मेरे अंदर वो कैपेसिटी, मेरे अंदर वो एबिलिटी है कि मैं एनालाइज कर पा रही हूँ उसकी सिचुएशन को, regardless of the fact that I haven't gone through, या मुझे उसकी सारी डिटेल्स भी शायद नहीं पता होंगी कि क्या होता है जब कोई पर्सन या स्टूडेंट या मेरा फ्रेंड एक एंजाइटी से गुजर रहा है या उसे डिप्रेशन हो रहा है, isn't it? So what are the basic things? How would he or she be feeling? What is he going through? So being empathetic, understanding that person's situation, how he is feeling, thinking, what is he trying, okay? Then ability to model and lead appropriate behavior. Definitely अगर मैं एक peer educator को present कर रही हूँ तो वो एक role model बनेगा दूसरे बच्चों के लिए. So what is his own way of coping up? What is his way of being creative, problem solving skills? Self awareness उसकी अपनी कितनी है? आई एम 100% श्योर आप लोग मेरे साथ एग्री करोगे कि दूसरे इंसान को समझने से पहले हमें अपने आप को समझना बहुत जरूरी होता है. Would you agree with me? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. है ना? मैं अगर अपने आप को अच्छे से समझ पाती हूँ, yes, अगर मैं अपने आप को समझ पाती हूँ, मेरी needs, right? What is, how am I feeling today? मेरी expression क्या है? मेरा emotion इस वक्त क्या है? मैं कैसे रिएक्ट कर रही हूँ? मैं रिएक्ट कर रही हूँ या मैं रिस्पॉन्ड कर रही हूँ? Okay, now here's a very important two words, reaction and responding. Can anybody just explain reaction और responding में क्या difference होता है? अभी हमने empathy की बात की थी, तो उसी terms से मैं इसको थोड़ा सा relate करना चाह रही थी. हम कभी-कभी घर में बच्चों से बात कर रहे होते हैं या अपने फैमिली मेंबर से बात कर रहे होते हैं, हम तुरंत एकदम से कुछ बोल देते हैं. इमीडिएट रिएक्शन हम बोल देते हैं, हाँ. इमीडिएट Right. विदाउट कुछ सोचे समझे जो हम रिएक्ट कर देते हैं. दैट इज जी. द रिएक्शन. एंड रिस्पॉन्डिंग, जब हम कोई बात सोच रहे हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, सोच के. राइट. थैंक यू सो मच. मैम ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी. आई जस्ट ऐड ऑन फ्यू थिंग्स टू इट. रिएक्शन इज लाइक मैंने एक बहुत इमीडिएट अपना जवाब उसे दे दिया, बॉडी लैंग्वेज दे दी, एक्सप्रेशन दे दिया, टोन चेंज करके गुस्सा कर दिया, तुरंत जवाब दे दिया. And responding on the other hand is thinking and then saying, using my words, my body language, my expression, मैंने कैसे उस सिचुएशन को डील किया. राइट? सो रिस्पॉन्डिंग में एक बैलेंस आ गया, रिएक्शन में कोई बैलेंस नहीं है. कुछ मैंने अपने एंड से सोचा भी नहीं, बस गुस्सा आया और मैंने फटाक से उसे जवाब दे दिया या फटाक से एक चांटा लगा दिया. दैट इज रिएक्शन. ओके. Here again, it's very important that how are we responding to the situation, to the person in front of me. तो एक सेल्फ अवेयरनेस में पीयर एजुकेटर कैसे अपने आप को ही हैंडल करता है सिचुएशंस में, कैसे वो रिस्पॉन्ड करता है अपने पीयर ग्रुप में, अपने स्कूल के एनवायरनमेंट में या टीचर्स के साथ. हाउ इज हिज बिहेवियर विद फ्रेंड्स? इज ही एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट अदर स्टूडेंट्स आर फेसिंग? किसी से होमवर्क नहीं हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्लास में, उसे रेगुलर टीचर्स से डिसरिगार्ड मिल रहा है, एंड देन ही इज इन डिस्ट्रेस. हाउ have you ever observed a child who is going to that another child who is not been able to cope up because of his some personal reasons? कुछ ऐसा है क्या? Have you seen that child who has this capability of helping the other person? कई बार होता है ना, हम लोग क्लासरूम में किसी बच्चे ने होमवर्क नहीं किया या कोई छुट्टी पे था या उसको समझ नहीं आ रहा है, तो एक अच्छे जो इंटेलिजेंट जो क्लास में थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, बच्चे उसको बोल देते हैं कि बेटा आप इसको ना समझा देना क्या क्या काम इसने मिस किया है, क्या इसको और समझना है, और मैथ्स में इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप समझा दोगे. डोंट वी डू दैट? या मैम, खुद को भी करना पड़ता है. छोटे बच्चे जब आते हैं 60 एडमिशन जब होती है, यस, 6 और 7 के बच्चों में ज्यादा वो मैथ्स और साइंस समझ नहीं पाते, तो हमें पेयर ग्रुपिंग करनी पड़ती है हॉस्टल में. राइट. बड़े बच्चों के साथ. राइट. सेम थिंग गोज ओवर हियर आल्सो, है ना? तो उसका जील कैसा है?
zeal is the enthusiasm of that child. The peer educator जिसे मैं nominate करना चाह रही हूँ, उसकी zeal for knowledge, sensitivity, sensitivity towards health and the well-being issues, है ना? How has he been responding to people around? How has he been with the people around? है ना? कैसे is he very sensitive to situations while dealing with them? कोई गिर गया, कोई चोट, उसको तुरंत नर्स मैम के पास लेके जाना. You know, these are very small things which we observe in children. They're always there to help others, isn't it? So these are few things which are very important while we are nominating the peer educator, because he is the role model. He is going to be presented as a role model. Children will look up for him, right? So उसको हम कैसे present करेंगे? How is he effectively communicating with others? Healthy relationships form कर रहा है, empathize कर रहा है, cope कर रहा है, manage कर रहा है चीज़ों को, you know. So yes, we are going to look up for those qualities. So finally, as qualities that the peer educator or trainer should possess. Okay, so यहाँ पर अगर आप देखेंगे peers का एक full form abbreviation, उस पे हमने full form बनाया है. P is for positive outlook. कितना वो सिचुएशंस में पॉजिटिविटी को प्रेजेंट करता है, क्या वो चीज़ों को देख के घबरा के ही इज फीलिंग नेगेटिव, ही इज फीलिंग लो, ही इज फीलिंग डिप्रेस्ड, ऐसा तो नहीं है. इज ही एंथुजियास्टिक, इज ही ईगरली पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस सोशल एक्टिविटीज, राइट? इज ही एम्पावर्ड, उसके पास इतनी नॉलेज है चीज़ों को लेकर के, राइट? इज ही रिस्पॉन्सिबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपने उसे एक टास्क दिया है, द पीयर जिसे आप नॉमिनेट करने के लिए सोच रहे हैं, इज ही रिस्पॉन्सिबल? द थिंग्स दैट हैव बीन गिवन टू हिम, असाइन टू हिम इन पास्ट एक्टिविटीज जो स्कूल्स में हो रही है, वो कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना पर्सनल काम, एक्टिविटीज का लेवल का काम सबको कोप अप कर पा रहा है. How sensitive he is towards situations, toward people. Sensitive not in negative way, please, right? Sensitive as in understanding the depth of things, understanding situations. तो हम उस चीज पर उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? नाउ अगर हम बात कर रहे हैं एक मल्टी मॉडल की, ठीक है, तो हमारी थीम्स हैं, राइट? अगर हम अब अपने पीयर एजुकेटर्स को रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, हम उन्हें नॉमिनेट कर लेंगे, राइट? बट वी नीड अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, कैसे हम इसको आगे लेके जा सकते हैं, राइट? नाउ इन दिस वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइफ स्किल्स मॉड्यूल ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ लाइफ स्किल्स, राइट? सो लाइफ स्किल्स हमारी जो कोर लाइफ स्किल्स हैं, आई एम श्योर पीपल मस्ट बी नोइंग अबाउट द लाइफ स्किल्स, है ना? कोई बताना चाहेगा मुझको कि लाइफ स्किल्स कौन कौन सी हैं? Anybody who would like to share the life skills? हम इतनी देर से बोल रहे हैं उसके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, किस टाइप की स्किल्स हैं वो? These are life skills. Ma'am, problem solving skills, Yes. cooperation. Yes, very good. Decision making. Yes. Anybody else? नेतृत्व, कौशल. तो बेसिकली अगर आप देखो, ये सारी जो हम अभी स्किल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये लाइफ स्किल्स जो हैं, हेल्पिंग इन अस. तो हम क्या चाह रहे हैं, जो एडोलेसेंट्स हैं, दे आर अंडर लॉट ऑफ, इस वक्त अगर आप देखो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस उनका सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है, राइट? द कंटेंट दैट दे आर रीडिंग, ओके, देन उनके अंदर कितना कौशल है उनके अंदर चीजों को कोप करने का, स्ट्रेस को लेके. वो लोग कितनी जल्दी कन्फ्लिक्ट्स में आ जाते हैं, कितनी जल्दी स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, इजंट इट? आपने देखा होगा, कुछ भी थोड़ा सा मार्क्स कम आए हैं बच्चों के तो उन्हें थोड़ा सा लो फील होने लग जाता है. किसी फ्रेंड ने कुछ कह दिया तो वो बहुत लो फील करने लग जाते हैं, है ना? सो फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आई है तो उनको वो अफेक्ट बहुत जल्दी करने लग जाती है नेगेटिव वे में. तो उनका मेंटल हेल्थ जो है, साइकोलॉजिकल स्टेट जो है, वो डिस्टर्ब हो जाता है बहुत जल्दी. नाउ द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट हमारे पास ये स्किल्स उनके अंदर हमें डेवलप करनी होंगी. देन दे विल हैव प्रॉपर डिवाइसेस, टूल्स
they will be self equipped, they will be self empowered by using the लाइफ स्किल्स. तो अगर हम देखें कि हमारा मॉड्यूल 1 में अगर हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, हम थीम्स अपनी जो बना रहे हैं एक प्रोग्राम को लेकर पीयर एजुकेटर को, तो हमें क्या करना है, द जर्नी फ्रॉम कोर स्किल्स को डेवलप करना है ना, जो हमारी कोर लाइफ स्किल्स हैं. दीज लाइफ स्किल्स एक्चुअली यू नो द साइकोलॉजिकल पुश फैक्टर जैसे हम उसको बोल सकते हैं. जैसे मैंने अभी बोला, इनेबल टू टैकल विद इमोशनल पेन, कन्फ्लिक्ट्स, फ्रस्ट्रेशंस एंड एंग्जाइटीज. फ्यूचर के बारे में, अब 10th के बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं, तो उनको मुझे आगे क्या करना है उस चीज़ को लेकर एंग्जाइटीज हो जाती हैं. बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम, हर कोई यही बोल रहा है, बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं. सो इट इनडायरेक्टली व्हाट आर वी गिविंग टू देम, है ना. सो उनके पास कितनी एम्पावरमेंट है, हाउ वेल आर दे सेल्फ इक्विप्ड टू हैंडल सो मच ऑफ स्ट्रेस और एनी काइंड ऑफ सिचुएशन विच इज नॉट वेरी फ्रूटफुल, या बहुत पॉजिटिव नहीं है वो सिचुएशन. घर में शायद कोई कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उनकी अपनी पर्सनल लाइफ में. एट दिस एज you must have seen or talking to children, you know, you come to know about breakups and all. So lot of things at the this age, and they are at a very high risk behavior उनका बन जाता है इस टाइम पे. तो हमें उन्हें बहुत ही एक प्रोसीजरल वे में हैंडल करना होता है, रेस्पॉन्डिंग वे में हैंडल करना होता है, isn't it? So that's why we are talking about the core life skills over here. Now if we say that it's what are life skills, these are the abilities, you know, for adaptive and positive behavior. तो मैं कैसे अपनी situations में positively behave कर सकूंगी या कर सकूंगा, उसको कैसे मैं adapt कर पाऊंगा उस situation को जो मेरे लिए change हो रही है. So if we talk about WHO, World Health Organization, उन्होंने ये key components जो life skill के हैं उसको 3 categories में divide कर दिया है: thinking skills, social skills और negotiable skills. So जिसे हम negotiating skills कहते हैं, कैसे हमें लोगों से बातचीत करके अपनी बात को, अपने पॉइंट को रखना है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है, किस तरह मैं सोच रहा हूँ, मेरी सेल्फ अवेयरनेस, मेरी सोशल स्किल्स, मेरी गोल सेटिंग, मेरा डिसीजन मेकिंग, लाइक मैम्स वर जस्ट डिस्कसिंग, ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग, कोपिंग विद स्ट्रेस, कोपिंग विद माय इमोशंस, माय ओन फीलिंग्स, how well I am in my interaction with or my interpersonal skills. तो अगर ये सारा, अगर हम ये themes देखें, ये सब इसमें covered हो रही है. I'll just quickly read out the journey from core skills, core life skills, building resilience for coping and capacity building, है ना. कैसे मुझे एक situation ने अगर नीचे ले गई है, मुझे low feel कराया है, तो मुझे कैसे फिर से खड़े होना है, how I have to stand up for myself, you know, I should be self equipped, right? या हम अपने इन पीयर एजुकेशन के थ्रू उनको इक्विप कराएंगे, एम्पावर कराएंगे. सो सेकेंड मॉड्यूल वी कैन टॉक अबाउट ग्रोइंग अप हेल्दी, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन एंड हाइजीन. दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ को रिलेटेड. they don't know, they are not eating healthy food, उनका सेल्फ हाइजीन पे इतना ध्यान नहीं है अगर, so we need to direct towards that, right? Family bonding and caring, communication, emerging, it's like, you know, family bonding is so important. हम लोगों ने जब टीचर्स ट्रेनिंग करते हैं तो एक ट्रायंगल पढ़ते हैं ना, एक बच्चे की लाइफ में एक ट्रायंगल होता है. Would anybody like to tell me about that triangle? Ma'am, teaching and learning is a tripolar process according to that triangle. Yes. Where the focus is on the student and the other two vertices are occupied by the teachers and the parents. Absolutely. Thank you so much, ma'am. Thank you. So the teacher, the parents and the environment, 3 major areas of a child's life, है ना. यही से वो सब कुछ अपने लाइफ में टेक कर रहा है, रिसीव कर रहा है information. All learnings is happening here. Observation is happening here for the child, isn't it? How parents are dealing with situations, how parent is responding or reacting. कभी कभी देखा ना, बच्चे बहुत जोर से चिल्ला रहे होते हैं, गुस्सा कर रहे होते हैं, बहुत अजीब सी लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं. एंड द मोमेंट वी सी दिस, व्हाट वी से फर्स्ट इज, पक्का इसकी फैमिली में इसने कुछ देखा है इस तरह का, बहुत हिट कर रहा है. मे बी देर इज डोमेस्टिक वायलेंस एट होम, मे बी इस तरह की मूवीज देख रहा है, उसके एनवायरमेंट में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, राइट? So all these things are affecting the child.
उसकी growth, उसका development. And at school, definitely we are the stakeholders over there as teachers. We have a very big responsibility over there because we are presenting them as, I mean, like, एक टीचर क्या है बच्चे के लिए, एक रोल मॉडल का रोल प्ले करती है, isn't it? I mean, like, मम्मी पापा की बात वो नहीं सुनना पसंद करते, बट टीचर की बात कही हुई एक लक्ष्मण रेखा की तरह उनके लिए हो जाती है. So it's very very honored and respectful that, you know, we teachers are carrying a very big responsibility. So किस तरह हमारी communication भी उनके साथ है will definitely help that child. Right. So as I said in the beginning, it's a collaboration. It's not a one person. It's not one person who's going to do all the entire work. Not possible. It's a teamwork, a collaboration of different people, and peer educators and we teachers, the admin staff, everybody holds. We all are stakeholders. Right. And then we can talk about healthy expression of emotions, dealing with anger, loss, and sadness. How to build up these resilience in the child. Developing healthy interpersonal relationships, definitely very important. Most of the time, children don't even know how to express, how to communicate, how to go and explain that person, how to talk, how to approach. वो लोग सबसे पहले यही डर जाते हैं कि मैं, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, मैं उससे ये कैसे क्वेश्चन पूछूं जाके अपने फ्रेंड से भी, अगर वो चाह रहे हैं तो देयर कंफर्ट जोन्स को हमें कैसे क्रिएट करना है. Okay, so we have to work on those small things. Every child is not very good at communication skills. Very difficult they find. They're struggling to even say one sentence to the teacher or to the friend or to the parent. They think thousand of times. So overthinking develop हो गई वहां से. These all things add on to the mental health. And they get caught into the vicious circle. एक थॉट आएगा, वो थॉट उनको और डिस्टर्ब करके नेगेटिव उनके इमोशंस क्रिएट करेगा, उनके बिहेवियर्स चेंज होने लगेंगे, इमोशनल लेवल पे वो लोग, फिजिकल लेवल पे दे माइट, यू नो, यू मस्ट हैव सीन, कुछ बच्चे बहुत वायलेंट हो जाते हैं कई बार, अपने फ्रेंड्स को हिट कर देते हैं, थोड़ा सा भी किसी ने कुछ कहा तो इरिटेट होकर चिल्ला देते हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, राइट, बिकॉज दे आर कॉट इन दैट विशियस सर्कल and they're not able to break this and they don't know how to do it, right? So all such situations, as we said in the beginning, one of the ma'am also discussed ki kyun peer educator important hai, because at least that's the comfort zone. They can go and approach that person, discuss their things, their emotions, their struggles, what are they feel, what is the conflict, what is stopping them, right? And then we can definitely talk about empowering self for digital world, like I just mentioned before, कि कैसे हमें उनको protect करना है. We have to tell them that everything, the content on the social media is not relevant. This is all leading to very high risk behaviors, because whatever we read, the content we are watching on the social media, it's really very having a very very bad effect on the youth. So making effective career choices, again our decision making, so हमारा सारा life skill इसके अंदर आ जाएगा, right? Okay. Now at school levels हम question raise करते हैं कि किस तरह से हम peer education के programs को run कर सकते हैं. How can we make it so interactive with children? Would anybody like to share their own ideas before we take it forward? वी हैव जस्ट डिस्कस्ड कि हमें लाइफ स्किल्स के बारे में उनसे बात करनी है, उनकी ग्रोथ, हेल्थ, इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन, हाइजीन, फैमिली बॉन्डिंग, केयरिंग, कम्युनिकेशन, हेल्थ एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस है, इंटरपर्सनल स्किल्स है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये सब हम लाइफ स्किल्स की बात कर तो रहे हैं, बट नाउ how can I make it so interactive and interesting for children to be participative, और कहीं ना कहीं हम indirectly उनको वो सब सिखा भी देंगे, right? They will enjoy also, they will learn also, because every time I can't take them for a session कि हाँ जी चलो आ जाओ भाई workshop करते हैं, isn't it? Every time daily basis it won't be possible for you. You have your own curriculum to be followed, other responsibilities at school. So what can we take forward this, how we can manage it, किन प्रोग्राम्स के थ्रू हम इन सबको, इन एक्टिविटीज को हाईलाइट कर सकते हैं, एक एक्टिविटी बेस बना सकते हैं. Anybody who would like to share at school level, how can I take this?
विद अलॉन्ग ऑफ कोर्स मेरे को ट्रेन करना है अपने पीयर एजुकेटर्स को। सो हमने बात की 9th और 11th के बच्चे हम ले सकते हैं, उनको हमने पीयर लीडर बना दिया, then they will be talking to others. Okay, so we can have more volunteers definitely. But now I am asking that how at school level we can design such activities. क्या चीजें हम use कर सकते हैं? What forms can we use? Through what activities we can teach them all these? कैसे हम उन्हें sensitize करेंगे, aware करेंगे, empower करेंगे? हम ये सारे words use कर रहे हैं. So we as stakeholders along with the peer educators, what can we do at the school? बहुत सारी एक्टिविटीज करवाई जाती हैं मैम जैसे स्कूलों में, तो उसी के थ्रू जैसे ड्रामा कोई स्किट करवा दिया और अलग अलग कम्युनिकेशन बच्चों में, तो फिर हमें पता चल जाता है कि एक्चुअल में बच्चा कहाँ सबसे ज्यादा वो कर रहा है, कौन सा बच्चा किस कुछ बच्चे ड्रामा बहुत अच्छा कर लेते हैं और कुछ बच्चे जो है दे आर गुड लीडरशिप में बहुत अच्छे होते हैं। तो इस तरह से हम उनमें इस तरह की क्वालिटीज डेवलप कर सकते हैं और ऐसे हम पहचान भी सकते हैं अपने बच्चों को। Okay, great. That's very good. Anybody else who would like to add on? Thank you so much, ma'am. Anybody else who would like to add on some activities? एक और भी है मैम, जैसे हम लोग जो है वीकली बेसिस पर हमें प्रेजेंटेशन करवानी होती है किसी न किसी बच्चे से किसी भी टॉपिक पर, तो वहां से भी हमें पता चल जाता है कि कौन सा बच्चा जब प्रेजेंट कर रहा है तो वो बहुत अच्छे से, और उसको बहुत सारे बच्चे बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, वहाँ क्वेश्चनिंग बहुत कर रहे हैं, तो वहां से भी आइडिया हो जाता है कि ही कैन बिकम बेटर पीयर एजुकेटर। और फिर जो सपोर्टिव लर्नर्स होते हैं हम उनको उनके साथ, जैसे हॉस्टल में रहते हैं हमारे यहाँ बच्चे, तो हम उनको हॉस्टल में उनके साथ अडॉप्ट कर देते हैं एक तरह से कि भाई तेरा गोद लिया बच्चा है, ये इस सब्जेक्ट में अपने साथ इसको साथ साथ लेके आगे बढ़ना है। जी, बहुत बढ़िया मैम, वंडरफुल आइडिया। लाइक यू नो प्रेजेंटेशंस के थ्रू ऑब्जर्व भी कर ले रहे हैं, उन बच्चों को भी ऑब्जर्व कर ले रहे हैं जो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हैं और बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर रहे हैं, प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं, कॉन्फिडेंट है, कम्युनिकेट अच्छा कर रहे हैं और लोग उनको रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, उनके साथ अटैच भी हो रहे हैं और हॉस्टल के लेवल पे भी आपको पता चल जाता है, एंड देन यू अलाउ दैट चाइल्ड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड हु नीड्स हेल्प, राइट? वंडरफुल आइडिया, वंडरफुल वे ऑफ यूजिंग दिस एज अ प्लेटफॉर्म, है ना? सो हम एक्चुअली में अगर देखा जाए तो इस एक्टिविटी के थ्रू हमने दोनों को ले लिया, मेरे पास पीयर एजुकेटर भी मिल गया और मुझे शायद उस प्रेजेंटेशन के दौरान उन बच्चों को भी ऑब्जर्व करने को मिल गया जो लोग ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे थे, isn't it? राइट? सो मुझे अपने टारगेट्स भी दिख रहे हैं, मुझे वो बच्चे भी नज़र आ रहे हैं जिन्हें हेल्प चाहिए, and the one who can lead them. So I'm getting both the things. Anybody else? Wonderful. Thank you so much, ma'am. मैम हमारे यहाँ पे ना हाउस में कुछ एक्टिविटीज मतलब कुछ हमें रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। Okay. तो वो रिकॉर्ड मतलब काफी सारे होते हैं, जैसे एकेडमिक है या को करिकुलर एक्टिविटीज है या उनके जैसे गर्ल्स है तो गर्ल्स की कोई फिजिकल कोई प्रॉब्लम का रिकॉर्ड है, तो कोई विजिटर उनके आते हैं मिलने उसका रिकॉर्ड है, मतलब बहुत सारे रिकॉर्ड हमें बनाने पड़ते हैं। तो बच्चों को ही लीडर्स बनाते हैं। Okay. जैसे एक लीडर हो गया मेन, एक फिर उसका सेकंड वाला लीडर हो गया, तो वो क्या करते हैं कि वो जब सारा रिकॉर्ड बनाते हैं तो उनमें खुद में कॉन्फिडेंस आता है, उनमें खुद में आता है कि हमें इस चीज को लीड करना है। और क्या है, जैसे मान लो अब एकेडमिक्स है तो एकेडमिक्स में जब भी एग्जाम होंगे तो जो भी बच्चा लीडर है तो वो सब बच्चों के मार्क्स लिखेगा, तो वो सब बच्चों के पास सब बच्चों को पता है कि हमें इसको लिखवाना है। और जब क्योंकि जैसे एक टेस्ट हुआ और सेकंड टेस्ट हुआ तो बीच में कंपैरिजन खुद ही हो जाता है, क्योंकि एक ही पेज पे दोनों का नंबर लिखा हुआ है। सपोज मैथ्स में मार्क्स है, एक में 40 एक में 50 है, तो बच्चे को खुद ही लग रहा है कि 50 है और उसमें 40 है, मतलब हमारे कम हुए। तो उससे क्या होगा कि वो धीरे 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 जो लीडर्स होते हैं वो फिर खुद ही करते हैं कि तेरे इस बार नंबर कम आए, क्योंकि वो पीयर ग्रुप भी हो गया, क्योंकि हॉस्टल में इकट्ठे ही रह रहे हैं, एक ही एज के ग्रुप के बच्चे रह रहे हैं, तो पीयर ग्रुप भी हो गया, प्लस वो लीडर भी है, और प्लस क्योंकि लीडर है तो सारे बच्चे उसकी बात मानते भी हैं, उनको पता होता है किसी में कोई लीडर है किसी में कोई लीडर है, तो अल्टीमेटली
जो सीनियर क्लासेस के बच्चे होते हैं वो ऑलमोस्ट सभी लीडर्स होते हैं, हाँ कोई जी। मैथ्स लीडर है, कोई कैसा लीडर है, तो उनमें हम्म, क्या है कि क्वालिटी लीडरशिप वाली और सबको साथ लेके चलने वाली जी। वो अपने आप ही आ जाती है। वाओ, वंडरफुल, वेरी गुड। थैंक यू सो मच मैम फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस, है ना। देखिए ये छोटे छोटे हमारे सारे मैम जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हैं, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को अपने आंसर्स भी इसमें से कहीं ना कहीं ज़रूर मिल भी रहे होंगे अभी जो क्वेश्चंस हैं उनके माइंड में, है ना। सो डेफिनेटली मैम ने जैसे अभी शेयर किया कि किस तरह से देखो सेल्फ कंपैरिजन ही बहुत हेल्दी माना जाता है, इजंट इट। सो बच्चे जब अपने मार्क्स खुद ही देख रहे हैं एंड देन दे आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम द सेम एज ग्रुप, अपने ही पीयर से उनको एक हेल्दी डिस्कशन, एक हेल्दी सपोर्ट मिल रहा है और एक सेल्फ कंपैरिजन भी आ रहा है, definitely the child will open up, will try to work on it, will try to progress। उसमें कुछ ना कुछ डेफिनेटली एक मोटिवेशन आएगा, है ना, अपने आप को ही सेल्फ मोटिवेशन की प्लेटफॉर्म पे वो ले जा पाएगा। वंडरफुल। एनीबडी एल्स हु वुड लाइक टू शेयर? आई एम श्योर यहाँ पर इतने सारे हमारे मैम्स हैं, दे आर डीलिंग विद सो मेनी चिल्ड्रन एवरी डे। कोई भी अपना एक्सपीरियंस अगर मैम आप लोग शेयर करना चाहें जहाँ पर किसी बच्चे को प्रॉब्लम थी और कैसे डील हुआ वो पीयर एजुकेशन के थ्रू और आपके सपोर्ट के थ्रू, वी वुड लव टू हियर दैट। एक्सक्यूज मी मैम, यस। मेरे क्लास में अभी 6 के बच्चे आए थे, उसमें अच्छा। एक बच्चा लिटरली अपने मम्मा पापा को भी तंग कर रहा है, मैंने टीसी लेनी है। फिर प्रॉब्लम, पेरेंट्स भी तैयार हो गए, मैंने कहा देखते हैं पहले हम रीजन तो जाने, रीजन जाना। तो वो हिंदी मीडियम से था बच्चा, उसको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था, वो अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता रहा था, उसको कॉन्फ्रेंस में लेके काउंसलिंग करी और उसको रीजन जाना। फिर मैंने उससे बोला कि भाई हेलो 20 डेज का टाइम रख अपने पास, बच्चे को बोला रखो अपने पास। उसकी पेयरिंग की मैंने 8 क्लास के बच्चे के साथ, मतलब कंसेप्ट समझने में। 8 क्लास की अच्छी बच्ची थी मैथ्स में, तो मैंने उसके साथ उसको प्रेयर करा और 11th की लड़की के साथ उसको प्रेयर करा कि भाई आप उसको साइंस समझाओगे। अच्छा। तो थोड़ा टाइम तक देना शुरू हुए। नाउ ही इज हियर, ही इज एडजस्टेड नाउ। ये है जब हम पेयरिंग कर देते हैं, हम काम देते हैं कि बच्चा ये करना है, जो रिस्पॉन्सिबल बच्चे, जैसे सभी ने बोला केयर करते हैं, तो होता है, ये काम करता है। किसी से एग्जाम्पल वो तीसरी में आ जाती है, ओके। अब उसको समझ आना शुरू होगा। तो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ये रहना नहीं था, तो मेन प्रॉब्लम था उसको, उसका हिंदी मीडियम था पीछे और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में है क्लासेस और सब्जेक्ट भी, तो उसको थोड़ा समझ नहीं आ रहा था। अच्छा अच्छा। तो जैसे टीसी लेना चाहती थी, नाउ शी इज हियर। और पेरेंट्स की उनके मान गए कि नहीं ठीक है, आप बच्चा एडजस्ट हो रहा है। ओके ये मे बी दिस इज द एग्जांपल। ओके ओके मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग मैम। सो मैम ने देखिए अभी एक और एक्सपीरियंस शेयर किया, आई एम श्योर इससे भी हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट वो मिल रहा है कि कैसे बच्चों के अंदर हिडन इश्यूज होते हैं, है ना। अब उसको इंग्लिश मीडियम और उसका इशू आ रहा था, सो मैम ने उसको पेयरिंग करा दी सीनियर के साथ। सो दीज आर वेरी वेरी स्मॉल स्टेप्स बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेस्ट प्रिवेंटिव वेज कि हम बच्चों को कैसे हेल्प कर सकते हैं। सो लाइक इफ वी जस्ट हैव अ लुक ओवर हियर, यहाँ पर आप देखिए लॉट ऑफ एक्टिविटीज हमने अभी बात की, तो मैम ने कुछ मैम्स ने ड्रामा बताया था, क्विज बताया था, राइट। सो वी कैन हैव लॉट ऑफ एक्टिविटीज। हम डिफरेंट टॉपिक्स को एक मेथडोलॉजी फॉर्म में लेकर, एक मल्टी मॉडल फॉर्म में लेकर इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। नाउ वी हैव योगा एंड क्लासिकल टेक्स्ट, ठीक है। सो यू सी योगा, डेफिनेटली आजकल माइंडफुलनेस पे आई एम श्योर आप लोग बहुत कुछ खुद भी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि हाउ मेडिटेशन, योगा, these activities of mindfulness are really helping, है ना, बिकॉज वो आपको इनर क्लेंजिंग देती है ना,
आपको अंदर से काम करती है, राइट? जो ओवर थिंकिंग हमारे प्रोसेसेस होते हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, जो बेसिक हमारे को मेंटल हेल्थ इश्यूज दिखाई देते हैं और समझ आ रहे हैं कि हाँ बच्चों को ये डीलिंग्स में प्रॉब्लम आ रही है, कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं, दे आर नॉट कॉन्फिडेंट, लो सेल्फ एस्टीम है बिकॉज ऑफ वेरियस सेवरल रीजंस। जैसे अभी मैम ने एक बच्चे का एग्जाम्पल शेयर किया, उसको लैंग्वेज इशू हो रहा था, या कोई ऐसे बहुत सारे इशू हो सकते हैं, उसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसके सेल्फ अपने ही सेल्फ डाउट्स क्रिएट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ सर्टन रीजन। हो सकता है कुछ पियर्स ने ही उसको बहुत पुल डाउन करके बुलिंग कर दी है, सो लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? So mindfulness are beautiful activities that you can inculcate in children at school level, right? रोज का 5 मिनट 10 मिनट का सुबह शाम का कुछ मेडिटेशन सेशंस रखे जा सकते हैं, राइट? एंड देन यू कैन इवन जो बच्चे हॉस्टल में ही रह रहे हैं, देयर आर मेनी एक्टिविटीज ऑफ माइंडफुलनेस, लाइक वेरी बेसिक, हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं अपने नाना नानी से या मम्मी पापा से कि सुबह घास पे ओस पे चलना चाहिए नंगे पैर, isn't it? आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, बट एक्चुअली इफ यू थिंक इट इज गोइंग टू काम योर इंटायर बॉडी। दीज आर सेंसेस, जो हमारे सेंसेस को एक्टिवेट करती हैं ये एक्टिविटीज एक्चुअली। सो माइंडफुलनेस क्या है? इट्स एक्चुअली एक्टिवेटिंग आवर सेंसेस, राइट? सो जब हमारे सेंसेस एक्टिव रहेंगे तो डेफिनेटली हमारा सारी जो अपने अंदर की जो हमारा पोटेंशियल है ना, जो हमारी स्किल्स हैं, जो हिडन टैलेंट्स हैं, वो बाहर आएंगे और नेगेटिविटी अपने आप ही नीचे सप्रेस होएगी, दब जाएगी, खत्म हो जाएगी, राइट? देन पेंटिंग, वेरी वंडरफुल वे ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन थ्रू कलर्स। जो बच्चे आपको पता है उनकी ड्राइंग्स अच्छी हैं, you can have inter class competitions, and let them play with colors, let them express, you will come to know beautiful stories out of it, okay? I would just like to quickly share a very small incident. We were working with a child who was 5 years, okay? 5 साल का बच्चा था, एंड वो रात को सपने में डरता था, तो मतलब रात को सोया है अच्छे से एंड बार बार नींद में जग करके he used to cry, right? The mother was quite कंसर्न अबाउट द चाइल्ड कि भाई क्या हो रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है कि उसे डांटा जा रहा है, या कुछ नेगेटिव एनवायरनमेंट भी नहीं है घर में इस तरह का, तो ये क्यों इसको ऐसा हो रहा है? एंड देन सच अ स्मॉल चाइल्ड वुड नॉट हैव बीन एबल टू एक्सप्रेस, है ना, वर्बली वो बहुत अच्छे से एक्सप्रेस तो नहीं कर पाता अपनी शायद चीज़ को, उसको ही समझ नहीं आ रहा था कि अंदर मुझे क्या इशू है। सो हमने उसको सिंपल एक ड्राइंग बनाने को कहा, समथिंग दैट इज देयर समथिंग कि कुछ आपको सपना आता है, बिकॉज रात को रो रहा था तो डेफिनेटली हमें लगा कि शायद कुछ ड्रीम में उसे डिस्टर्ब कर रहा है, तो हमने उसको ड्रॉ करने के लिए बोला कि आपको क्या कुछ सपना आ रहा है क्या? क्लास में ही जाकर के एक जनरल टॉपिक रख दिया ड्रीम्स के बारे में हमने, तो वहाँ पर हमने बच्चों से इंटरैक्ट करना शुरू किया, आपको सपने आते हैं? तो ऑफ कोर्स हमारा टारगेट वो बच्चा था, तो हम उस पर भी आए कि भाई तुम्हें आता है क्या सपना? हाँ आता है। कैसा सपना आता है? डर लगता है। क्यों, क्या हुआ? एंड देन ही स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग कि मुझे ना भूत दिखता है। अच्छा, सो भूत दिखता है। सो वी जस्ट आस्क्ड हिम, ओके सब ना अपना अपना ड्रीम्स ड्रॉ करो। सो दे ड्रू इट, एंड दिस चाइल्ड 5 years old, he drew एक ना जैसे हमारा एक थंब का शेप होता है ऊपर से ऐसे कर्व्ड, ऐसे उसने एक लंबा सा एक फेस जैसा बनाया, उसकी आंखें एंड अ वेरी स्माइली फेस, एंड कलर्ड इट ब्लैक, ओके, एंड उसके नीचे उसने एक एप्पल बनाया। सो वी वर लाइक ट्राई टू रिलेट कि ये भूत है और ये एप्पल का क्या रिलेशन हो सकता है। एंड देन ही एक्सप्रेस्ड थ्रू दैट ड्राइंग दैट ये भूत मेरा, आई एम श्योर आपको आजकल पता होगा, बच्चों के पास आजकल ये पॉपेट आ रहे हैं जो बहुत प्रेस करते रहते हैं ना, दीज आर गुड फॉर देयर सेंसरीज आल्सो। हैव यू सीन दैट? बच्चे आजकल बहुत अट्रैक्टिव हैं उन पॉपेट्स के, उसमें होल्स होते हैं, आप उसे पुश करो तो पीछे दूसरी साइड से वो पॉपअप हो जाता है, फिर आप उसे प्रेस करो तो पीछे आ जाता है। हैव यू सीन दोस? एनीबडी? Yes, ma'am. या Yes, ma'am. Yes, ma'am. सो उसका वो कहीं मिसिंग था, और वो एप्पल शेप का था, घर में कहीं था बट वो मिसिंग था, एंड ही वाज एक्चुअली मिसिंग आउट ऑन दैट थिंग कि मेरा वो कहाँ गया। एंड उसको वो ड्रीम के थ्रू ही वाज एक्सप्रेसिंग, तो उसने वो पेंटिंग के थ्रू हमें एक्सप्रेस करके बताया, एंड वी केम टू नो, वी स्पोक टू द मदर एंड शी सेड या वो कहीं इधर उधर हो नहीं मिल रहा है आजकल। सो वी आस्क्ड हर कि सर्च करिए या उसको नया लाके वैसा दीजिए, एंड it actually helped. They found out the apple puppet and he was happy. से
टिल नाउ वी हैवंट गॉट एनी इन्फॉर्मेशन कि उसे डर लग रहा है या उसका अंदर का जो फियर है उसे परेशान कर रहा है कि मेरा अभी पॉकेट नहीं है. एंड देन वी कुक्ड अप स्टोरी कि यू नो पीपल हु स्टील इट्स नॉट गुड. तो भूत ने चोरी की, अच्छा नहीं था, उसे पुलिस ले गई. सो वी जस्ट यू नो रिलेटेड स्टफ एंड ही इज over and out from that experience now. So that's how I wanted to just share कि painting, a beautiful way of expressing, right? Debates जो बच्चे बोल सकते हैं बहुत अच्छी तरह, जैसे मैम ने बोला कि हम लोग ये presentations कराते हैं बच्चों से. So we can have debates on various topics where they can come up and express themselves. कुछ आप रिटन कंपटीशन, जो लोग बोल नहीं पाते हैं ज़्यादा अच्छे से, वर्बल नहीं है, कम्युनिकेटिव नहीं है, तो आप उनको रिटन डिबेट उसमें कर दीजिए, राइट. सो आप उनको रिटन कंपटीशन में डाल दीजिए. दे विल write about activities, about their expressions, about their experiences, right? तो आप वो टॉपिक्स लीजिए. लिटरेचर से स्टोरी टेलिंग, अ ब्यूटिफुल वे, जहाँ हम पपेट्रीज छोटे बच्चों के साथ पपेट्स यूज कर सकते हैं. बच्चों में बड़े बच्चों के साथ आप definitely you can have a lot of activities through storytelling, right? So you know, jingle makings, role plays, poster making competition, you can have different weeks. Just divide, you just look at the concerns of your children in your at your school or at the hostels, and then see कि कहाँ पर क्या problems आ रही हैं. Just have a brainstorm with these peer educators, talk to them, take the feedbacks from them regularly कि what feedbacks are they getting from their own peers, what are the concerns, कहाँ कहाँ वो लोग क्या क्या face कर रहे हैं. So music evenings हो गई hostel पे शायद कुछ. So it will give them a lot of relaxation also, and a platform जहाँ पर वो अपनी sharing किसी ना किसी form पे. See, because every child is unique, they have a different way of communicating, they have a different way of expressing and learning, right? So आप different platforms रखेंगे तो कहीं ना कहीं I'm sure those children who are not very opening up or they are not very communicative, they will come up and start speaking or expressing, right? So yes, these are some of the activities that we can help them to engage in. Now if we see that the implementation of the peer educator program, so हम training workshops with school peer educators कर सकते हैं, right? Identifying prominent psychosocial issues in the Indian context, जो हमको पता हो कि भाई हमारे Indian context में क्या क्या issues psychosocial environments में आ रहे हैं, बच्चे क्या क्या pick कर रहे हैं, कहाँ से उनको issues आ सकते हैं. तो we can touch upon those topics. Peer educator training in specific life skills, as we have been talking about the life skills, right? हम उनको और brush up कर सकते हैं जो हमारे peer educator है, हम अपनी life skills पे how to be more empathetic, interpersonal skills में और हम कैसे communicate कर सकते हैं. If they see someone at a risk, at a very high risk behavior, what they have to take, क्या एक psychological first aid के बारे में उस peer educator को पता होना चाहिए कि किसको उसको immediately जा करके inform करना है that this child is at a high risk, you know, because you must have seen, I don't know, कोई ऐसा केस हुआ हो जहाँ पर someone tried to take their life. Any experience at the hostels? कुछ ऐसा आपने देखा हो कि सेल्फ हार्म के इश्यूज आए हो आपके सामने? Anyone? यस मैम. Yeah. JNV कोटरंका में मैम एक लड़की है, Okay. ही इज इन 8th स्टैंडर्ड, शी इज इन 8th स्टैंडर्ड. Okay. और मैम उसने पता नहीं क्या हुआ था, उनकी क्लास में कोई इंसिडेंट हुआ होगा या क्या हुआ होगा, बट उसने क्या करा, क्लास में अपने आप को पंच किया. Okay. और पूरा उसने हाथ उसमें पंच करा हुआ था. बाद में जब उसको देखा, बच्चे उसको लेकर आए, तो उसने यही बोला कि मुझे धक्का लग गया था, मेरा फेस जाने वाला था, मैंने फेस पे हाथ रखा था. तो उसने मतलब पूरी स्टोरी बना के हमें दिखाई. पूरी क्लास ने उसको इस चीज में पूरा सपोर्ट किया. पूरी क्लास ने भी सेम स्टोरी ही बताई, किसी ने ये नहीं बताया कि उसने खुद पंच किया था. बट 2-3 दिन के बाद पता नहीं कहाँ से उनके HM को ये बात पता चली, उन्होंने बात की लड़की से, तब पता चला था कि उस लड़की ने खुद को खुद ही हार्म किया था. और वो जूडो प्लेयर है लड़की, नेशनल्स के लिए भी गई थी. तो ये एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव का बिहेवियर था जो हमारे यहाँ पे सामने आया था, और ये स्कूल आवर्स में ही उसने ये सारी चीज की थी. बट उसमें ये था कि उसमें उसको जो है वो पीयर सपोर्ट बहुत ज्यादा था, पूरी क्लास ने उसको सपोर्ट किया था. Right. So what was the action taken, ma'am? फिर क्या इसका आगे का प्रोसेस रहा?
मैम उसके बाद उसकी काउंसलर से बात करवाई थी, काउंसलर्स ने उसको काउंसिल किया था इन सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि ये सेल्फ उन्होंने यही बताया था काउंसलर्स ने, बाकी एचएम्स के साथ, बाकी टीचर्स के साथ भी, सबके साथ बात की थी कि अगर आपको कोई भी ऐसा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर आपको कहीं पे भी नजर आता है तो उस बच्चे को उसी टाइम पे आइडेंटिफाई करके आप उसको काउंसलिंग के लिए भेजो, क्योंकि ये अपने बाद ये बाकियों को भी हार्म करना स्टार्ट कर देंगे बच्चे। तो बस उसका काउंसलिंग सेशन से चले थे, बाद में आई गेस उसके पेरेंट्स के साथ भी बात की थी। राइट, सो कुछ रीजन पता चला था मैम, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड हर सेल्फ हार्म? मैम उसका कोई खास रीजन, क्योंकि ये चीज़ बात जो वो बच्चे हैं वो उनके जो जूनियर एचएम्स हैं उन्होंने ही बात की थी, बाद में उन्होंने ये चीज़ सिर्फ प्रिंसिपल सर के साथ ही डिस्कस की थी। इनका इतना ज़्यादा नहीं पता चला था कि एक्चुअल रीजन क्या था उसका, तो वो उनके एचएम्स के तक में भी हो सकती है बात, बट बाकी पूरे स्कूल को नहीं बताया था इस चीज़ के बारे में, उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया था। ठीक है मैम, that was also a protocol that was taken. Fine, thank you so much मैम। सी यहाँ पर एक हमारे पास सेल्फ हार्म का केस आया। राइट नाउ इफ अ पीयर एजुकेटर इज वेल ट्रेन्ड एंड नोडल टीचर्स जो हैं वहाँ पर, कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, व्हाट इज द साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड इफ दे सी समथिंग। यहाँ पर सब बच्चों ने उसको सपोर्ट तो किया, बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो बात वाज नॉट वेरी क्लियर कि उसने पंच किया है, राइट, उन्होंने उसे हाइड कर दिया, बट दिस थिंग हैज नॉट गिवन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि वो शायद लाइफ में आगे दोबारा ऐसा कभी कर सकती है। हमने, ठीक है, काउंसलर्स ने उसको डेफिनेटली हेल्प किया होगा, एंड अदर चिल्ड्रन वुड हैव आल्सो गॉट अ मैसेज दैट कि अगर कुछ ऐसा होता है तो व्हाट इज द वे, व्हाट इज द राइट वे टू टेक दिस थिंग, राइट, उसको किस तरह हमें गाइड करना है। एज अ पीयर एजुकेटर मुझे मेरा फर्स्ट ड्यूटी क्या रहेगा, मुझे मेरा चैनल क्या रहेगा का, isn't it? So these are very very basic steps, okay, जहाँ पर हमें ये ट्रेनिंग्स और ये पीयर एजुकेटर्स को इन्फॉर्म करना होगा, उन्हें एम्पावर करना होगा, दैट राइट। इफ यू सी सर्टन थिंग्स जो बहुत क्रिटिकल लग रही हैं आपको, इमरजेंसी है, यू नीड immediate help there, please go and consult this person, okay, this is the right person where you have to deliver the information, and from there they will take the process further, right? So this is very very important, because many such cases have been coming up amongst adolescents where due to various conflicts and issues they have been self-harming. You know, even in cases of hormonal changes during this age, where adolescents are very much confused and they are feeling frustrated, they do certain acts, right? So वो एक अपना कोपिंग मैकेनिज्म इस तरह से डेवलप कर लेते हैं दैट वो उनको सेल्फ हार्म से ठीक लगता है, थोड़ी देर अच्छा लगता है, ओके, एंड देन द फीलिंग हैज बीन सप्रेस्ड फॉर दैट टाइम. So we have to keep a watch on such situations and such incidents as well. So definitely अगर peer educator training की हम बात करें और हमने life skills की बात करी है, it has been a very very important step there of life skills, right? If he himself is self-aware, self-equipped, अच्छी उसकी अपनी coping strategies हैं, अपना coping style है, coping with emotions है. See, emotions ऐसा नहीं है कि वो peer educator के नहीं होंगे, right? उसके stress नहीं होंगे. He or she must also be going through certain things, right? So, but वो तो cope कर रहा है, and how he can support the same message to the others also. Then identification of the peer trainers, वो हम कर सकते हैं, right? Continued interaction with the core resource team. So जो हमारी resource team रहेगी school level पर, या जो हमारे लिए ये सब informations implement करने का, interaction करने का ways at school level पे जो भी होगा, every school has different ways, so we have to be we can continue with that also, right? Now certain suggested follow up by the participating schools में brainstorming हो सकता है of broad learning outcomes. ठीक है, हम कुछ protocols लेके चल रहे हैं, कुछ workshops deliver कर रहे हैं through peer educators, through counselors, various ways school में हमारी activities चल रही हैं. तो ब्रेनस्टॉर्मिंग वहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाती है कि क्या टॉपिक्स पिक करने हैं, कैसे इसको आगे लेके जाना है, व्हाट विल बी द एंटायर प्रोसेस, राइट? देन एडवोकेसी विद द स्कूल, ठीक है, स्कूल के साथ डील करना, वो क्लाइमेट बिल्डिंग सेशंस, द पीयर एजुकेटर्स विद द सुपरविजन ऑफ द टीचर्स इन चार्ज, काउंसलर इम्पार्ट द ट्रेनिंग फॉर रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन 9th and 10th 11th, sorry.
सो कैसे पीयर एजुकेटर्स के थ्रू सुपरविजन ऑफ टीचर इंचार्ज जो है, काउंसलर है, कैसे इन ट्रेनिंग्स को हम लोग और स्टूडेंट्स तक पहुंचाएंगे, राइट, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. देन आफ्टर एवरी सेशंस फीडबैक्स लेना, reflections may be recorded and forwarded to the concerned person. So these are some suggestions, right? Then definitely हमारे जब हम एक मॉडल को फॉलो करेंगे एक पीयर एजुकेटर के अपने स्कूल में, अपने हॉस्टल लेवल्स पर, तो हमारे एक्सपेक्टेड आउटकम्स होते हैं. सो peers to act as change agents, right? We are considering them, we are looking at them for a change. They will bring in change. Okay, so जो concerns आप लोगों ने अभी अभी थोड़े शेयर करे कि हाँ हम इस तरह से डील कर रहे हैं, और peer उनके जो सीनियर्स थे या जो बच्चे थे जिनको इंचार्ज बनाया गया था, उनके थ्रू हमने कैसे इस चीज़ को हैंडल किया, राइट, या कैसे उस बच्चे को उस मैसेज डिलीवर करवाया. So how these things can happen? Of course, the peer educator becomes the role model. तो जो हमारे peers हैं वो हमारे लिए एक change agents बन सकते हैं वहाँ पर. Positive coping strategies हम expect करेंगे वहाँ पर कि बच्चों में अच्छी coping strategies develop हों, right? Because definitely if you see they are unable to tackle their own situations, their own stress, their own emotions, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते हैं ना. They are not equipped, they are not empowered to understand such things कि मुझे कैसे इन सिचुएशंस में डील करना है. या तो वो बहुत प्रोटेक्टिव फैमिलीज से आए हुए होते हैं, ओवर प्रोटेक्टेड होते हैं, एक कोकून में रखे हुए होते हैं, उन्हें पता नहीं है यहाँ से बाहर निकलना है. मुझे अगर कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि मुझे डील करना पड़ेगा तो हाउ विल आई डू, तो वो घबरा जाते हैं. सो डेफिनेटली अगर मैं ये रन कर रही हूँ तो मैं अपना एक एम लेके चल रही हूँ कि थ्रू सच प्रोग्राम्स एट माई स्कूल और हॉस्टल्स we will create positive coping strategies. Then definitely effective communication skills, very very important, isn't it? अगर एक्सप्रेस ही नहीं कर सकेंगे, अगर हम बोल ही नहीं पाएंगे अच्छे से दूसरे को, even those negotiation skills, you know, among the peers, है ना, कितना सारा इन्फ्लुएंस रहता है ना peers का आपस में ही. कुछ अच्छा रहेगा इन्फ्लुएंस, कुछ बैड इन्फ्लुएंस भी रहेगा. तो जहाँ बैड इन्फ्लुएंस आ रहा है वो कैसे इफेक्टिवली उसको कम्युनिकेट करके वहां से निकल भी पाते हैं, isn't it? Learning to say no to situations. हम आज भी, I'm sure we as adults also many a times deal with situations जहाँ हम no ही नहीं बोल पाते हैं, isn't it? Would you agree with me? Yes, ma'am. Yes. So there are many such situations. And then emotional and social sensitivity, definitely understanding others' emotions, self emotions, socially मुझे कैसे behave करना है, improved stress management capacity, you know, stress को मैं कैसे manage करूँगा, building resilience कैसे होएगी मेरी. So all these things will be the expected outcomes from such programs, right? And इसी का अगर आप देखें ये सारा जो pointers हैं, coping strategies, communication skills, right, effective communication skills हो गई हमारी, emotional social sensitivity है, improved stress management है, ये सब हमारा life skill का ही actually part है. And I would definitely say that कि हमें अपने स्कूल लेवल्स पे छोटी क्लासेस से ही बच्चों के अंदर ये चीज़ें इनकलकेट करनी होंगी. इवन वी हैव टू सेंसिटाइज द पेरेंट्स एंड मेक देम अवेयर कि किस तरह से बच्चों के साथ घर में हमें क्या चीज़ें, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो उन्हें हेल्प कर सकती है जिससे वो अच्छा डिसीजन मेकअप कर पाएँ. यू नो, दे आर मोर ओपन, they have more better interpersonal skills to deal with people, कितना प्रॉब्लम सॉल्विंग वो कर सकते हैं. सो अगर हम इन सब 10 लाइफ स्किल्स जो WHO ने लेड डाउन कर रखी है उस पर अगर हम काम करें सो डेफिनेटली लॉट ऑफ चेंजेस यू विल सी, इजंट इट? बहुत इम्प्रूवमेंट हम देखेंगे कि बच्चों की मेंटल हेल्थ कितनी इम्प्रूव हो रही है. एंड स्पेशली बाय द टाइम दे कम टू देयर एडोलेसेंस, देयर टीनेज, बहुत ज़्यादा रकस क्रिएट हो जाता है उनकी लाइफ में. इतने सारे इन्फ्लुएंसेस होते हैं, इतने सारा प्रेशर होता है, पढ़ाई का अलग होता है. तो अगर वो बचपन से ही वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स, इट विल डेफिनेटली हेल्प. देन अगर हम स्कूल में उनको ये पीयर एजुकेटर्स के थ्रू, काउंसलिंग्स के थ्रू सेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, वर्कशॉप्स क्रिएट कर रहे हैं, जो हम एक्टिविटीज़ अभी डिस्कस कर रहे थे, योगा करवा रहे हैं, पेंटिंग, डिबेट्स, ड्रामास, लॉट ऑफ थिंग्स, क्विज, यू नो, रिटन एक्सप्रेशंस,
सो अगर हम ये सब एक्टिविटीज रेगुलर बेसिस पे उनको प्रोवाइड करा रहे हैं तो आई एम श्योर दे विल लर्न टू डील विद द सिचुएशंस एंड दे विल फ्लरिश. Okay, you would agree with me that this generation is so creative. You know, they're very creative, they have a lot of imaginations and unke beyond even what we can think. You know, they think out of the box and they create so much. सब में एक अलग ही capacities है, potentials हैं. So we need to unleash all this and help them live a better, healthy mental life, physically, mentally, emotionally. They have to be strong and they can live a better life. Yes, we have to tell them struggles are a part of life. Problems तो आएंगी आएंगी, but how we can overcome them? We can equip them, we can empower them. You know, we are carrying such big responsibility on shoulders as stakeholders. Why not let's get collaborate? Okay, collaborate and let's start talking. That's the best way we can, you know, reach out to more children and be more effective and help them guide. So yes, this is what we wanted to discuss in today's program. I'm really thankful to all the participants for you know, being so cooperative and listening. And now we can move on with the session with people's experiences. And if you have FAQs, we can discuss that. So we have an open platform here now where we can have questions and we can interact. किसी के कुछ points हैं जो वो share करना चाहते हैं अपने experiences. We are really open for this. Yeah, come on. Let's see the enthusiasm in our teachers and heads. Okay, Poonam is raising her hand. Yes, Poonam, please go ahead. Do you have a question? Poonam, do you have a question? You have raised your hand. Poonam Bagri. Ma'am, do you have a question? Poonam ma'am? Okay. Anybody else who would like to please share their any incidences, any experiences of their journey? Okay, Poonam is saying no. Okay, no worries. You can unmute yourself and please speak. I would really appreciate. हाँ, एक्सक्यूज मी मैम. Yes, Sita ma'am. एक्चुअली में जहाँ तक पढ़ाई की बात है, बच्चों को डील करने की बात है, मुझे नहीं लग रहा किसी भी नवोदय की टीचर को प्रॉब्लम है. Exactly. We are overburdened with extra work. Okay. This is the main problem. Okay. I think all the teacher who are here, सारे HMs हैं, पता है कितना मुश्किल है. एक तो ये HMship का काम मैम, थोड़ा सा भी इधर से उधर हो गया, हमारे सिर गर्दन पर तलवार लटकी हुई है. और फिर इसके नॉट ओनली दिस मैम, देयर इज लॉट एंड लॉट्स ऑफ बर्डन. ये रजिस्टर तैयार करो, वो रजिस्टर तैयार करो. हम तो रजिस्टर तैयार करने मतलब बच्चे का होमवर्क आई थिंक इतना नहीं होता है जितना हमारा हो जाता है. Okay. तो ये सही बात है मैम. Yes ma'am, I can understand the issues that you must be facing at your work, but that's how, I mean, आप कैसे इसमें अपने लिए भी एक कुछ you know, building resilience and building confidence and building coping strategies would definitely work, I would say. Actually we are going through the mental stress. सच में बच्चों को तो हम शायद देते ही नहीं है मैम. बच्चों का मेंटल स्ट्रेस तो हम know how to deal with, but what about our mental stress? Yes, definitely ma'am. That's what I spoke about, mindfulness, isn't it? I'm sure आप लोगों का burden आप बात कर रहे हैं, it is affecting your psychological health or mental health. बट अगर हमें ही कोप नहीं करना आएगा तो मैम हम बच्चों को क्या आगे सिखाएंगे, है ना. सो पहले हम अपने ऊपर भी काम करना शुरू करते हैं, थोड़ा माइंडफुलनेस एक्टिविटीज पे काम करना शुरू करते हैं. लेट्स ट्राई सम योगा एंड मेडिटेशन इन द मॉर्निंग आवर्स और इन द इवनिंग वंस यू आर फ्री. दिस विल डेफिनेटली हेल्प. यू कैन राइट योर ओन जर्नल्स आल्सो मैम, दैट कैन आल्सो हेल्प यू. कभी कभी
लिख लें, अपनी एक डायरी बना लें, कुछ कोपिंग स्ट्रेटजीज अपनी ही सोचे मैम कि व्हाट आई कैन डू बेटर फॉर माई सेल्फ, यू नो। खुद के अपना खुद पर्सनल कुछ लिखने के लिए कोई वक्त नहीं है मैम, आप सोच नहीं सकते। ठीक है मैम, तो आप 5 मिनट निकालिए अपनी लाइफ के रोज के, और कुछ मत कीजिए मैम, बस साइलेंस में बैठिए, जस्ट सिट इन साइलेंस एंड सी द मैजिक। जैसे ही हम साइलेंस में बैठते हैं वैसे ही दरवाजा टक टक, मैम कैसे हो गया, मैम वो हो गया, नहीं तो रात को भी फोन, मैम आपके हाउस की बच्ची बीमार हो गई, चलो हॉस्पिटल, चलो वहां ले चलो, क्या करना। Exactly, ma'am. What you are आई saying. नो मैम, आप लोगों का बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, द पोजिशन दैट यू आर एट, आई कैन ट्रूली अंडरस्टैंड एंड आई रियली आई कैन फील द सिचुएशन जो आप मुझे अभी बता रहे हैं कि कैसे हर वक्त रात के टाइम पे भी कभी भी नॉक हो जाता है तो स्लीप भी डिस्टर्ब हो रही है डेफिनेटली, है ना। सो मैम इन सब में आप यू हैव टू जस्ट डू अ स्मॉल स्टडी अबाउट योरसेल्फ कि मैं कैसे 5 मिनट्स निकालूंगी। जस्ट 5 मिनट्स फॉर योरसेल्फ मैम डेली, एक साइलेंस में बैठिए, जस्ट रिलैक्स, ट्राई अपने माइंड को ना मैम, बस रिलैक्स। जो हमारा माइंड है ना मैम, थिंकिंग 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 करके इतना वो हो जाता है ना कि हम फिर यही सोचने लगता है कि अब तो टाइम भी नहीं है, अब तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है और ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो वो सारा नो नो ही नजर आता है। एक यस टू योर सेल्फ ऑफ 5 मिनट्स एंड आई एम श्योर इट विल डेफिनेटली हेल्प यू मैम। थोड़ा सा इसे ट्राई करके देखिए, बिकॉज यस आई कैन ट्रूली अंडरस्टैंड कि कितना हेक्टिक है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल भी हो जाता होगा कई बार सिचुएशंस को हैंडल करना आपके लिए, बिकॉज बच्चों के साथ डील कर रहे हैं, बहुत सेंसिटिव पार्ट है, पेरेंट्स के अपने कंसर्न्स रहते होंगे, प्लस जो सीनियर्स हैं उनकी अपनी एक वो रहती होगी, थोड़ा प्रेशर आपके ऊपर आ रहा है। सो अपनी सेल्फ हेल्थ पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है मैम इन सब में। आई नो द डिमांड ऑफ योर प्रोफेशन इज सच दैट nothing much you can also do about it, but yes, मैम जैसे कोर्स स्टार्ट हो रहा था तो मैंने पहले प्रिंसिपल मैम को यही बोला था, मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स तो सब देख रहे हैं, मेंटल हेल्थ ऑफ टीचर जो एचएम्स हैं उनको कौन देखेगा। जी जी मैम। आई हैव सेड दीस वर्ड टू माय प्रिंसिपल, yes, so she was just smile on me and कहते ऐसे ही है। yes ma'am, you can request sessions for yourself also ma'am now. Some relaxing sessions for us, isn't it? some workshop इन सेशन में भी हमारे फिर मैम वो सिलेबस पीछे छूट जाता है, प्रॉब्लम तो ये है, तो लगाने को तो हम लगा लें सेशन, फिर प्रॉब्लम है कि व्हाट अबाउट आवर सिलेबस। नहीं मैम, ऐसे रेगुलर बेसिस पे ना रख करके बीच में जैसे कभी कभी once in a while. Ma'am, we are too much mentally strong because we are HM. Yes. इतने सालों में 15 सालों की HMशिप में अब तो इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि चीजें वरी करती हैं, बट भगवान पे छोड़ा हुआ है, चलो जी। अपनी तरफ से फुल डेडिकेशन होती है, अपनी तरफ से फुल डेडिकेशन है। नहीं मैम, आई कैन बच्चा ऐसा सोच रहा है, ऐसा नहीं सोच रहा है, बट विद HM एंड विद these posts PGT TGT there is a lot of work. yes, we are ladies, जेंट्स पे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, we are ladies, हमने घर भी देखना है जी, हमने सुबह का खाना देखना है, दोपहर का देखना है, रात का देखना है, अपना बच्चा भी देखना है, बाकी बच्चे भी देखने हैं। ये प्रॉब्लम जो होगी ना मेंटल हेल्थ की वो ज्यादा जेंट्स में नहीं होगी, लेडीज में होगी मैनेज करना। यस मैम, हैट्स ऑफ टू यू ऑल मैम, जो आप इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ब्यूटीफुली हैंडल कर रही है, बच्चों को भी और सारा कंसर्न्स जो होते हैं पेरेंट्स को लेकर के भी और एडमिन भी और सारा एक साथ। इट्स रियली बिग hats off and a big applause to you all, but definitely your health also matters ma'am, so I would really appreciate कि अगर आप लोग अपने लिए थोड़ा सा समय ज़रूर निकालिए, 5 minutes sit in silence, you know, give yourself some time, या और कुछ नहीं तो सुबह गीली घास पे जाइए, थोड़ा माइंडफुलनेस एक्टिविटीज मैम होना आज के टाइम में, दिस इज व्हाट along with the life skills that we have been talking up ना, coping strategies, हर एक इंडिविजुअल का अपना एक coping mechanism होता है मैम, so let's develop, think about one mechanism that I can use to just get over with this mental stress. Ma'am,
यस मैम। हमारे यहाँ तकरीबन सबके हाउसेज में, क्योंकि सब एचएम्स हैं, अबव 40 स्टूडेंट्स तो होंगे, 40 तो जरूर होंगे। ओके तो आप ये लगाइए, जो आप कह रही है ना कि 1 मिनट पीस में बैठिए और 5 मिनट शांत होइए, तो वो 40 में से 1 या 2 प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड हमेशा रहते हैं। तो हमारे पूरा दिन और पूरी रात उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही चलता है कि उनका अगले दिन सोल्यूशन क्या देना है। जी जी मैम। क्योंकि वो सोल्यूशन देके हटते हैं तो अगला तैयार हो जाता है। यस डेफिनेटली। ना तो आप नहीं, बेसिकली आप काउंसलर है मैम? यस मैम, वी आर साइकोलॉजिस्ट। यस। अच्छा, आप प्रोफेशनली काउंसलर हैं? यस तो यस। आपसे एक रिक्वेस्ट है, बिकॉज यू आर एज ए गेस्ट हियर, तो आप एक रिकमेंडेशन दीजिए कि हम टीचर्स को एटलीस्ट एक वार्डन दिया जाए समिति की तरफ से। मैडम, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर 24 आवर्स 40-50 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और उनकी सारी प्रॉब्लम को समझना, जिसकी काउंसलिंग हमें ही नहीं पता कौन से टेस्ट क्या होता है क्या नहीं होता है, और हम नहीं कर सकते बिकॉज हमने वो स्टडी नहीं की है। लेकिन फिर भी ठीक है, हम अपने बच्चे पाल रहे हैं, उस हिसाब से हम उनको टैकल करते हैं। बट फिर भी कहीं ना कहीं हम वो 100% नहीं दे सकते जितना एक बच्चे को मिलना चाहिए। जो वार्डन है और काउंसलर है, जो वो काम कर सकते हैं, वो हम नहीं कर सकते, है ना। तो हम तो मैम, मैं एक मिनट इंटरप्ट कर रही हूँ। अबाउट मैम, हमने जो अभी बात की है कोलैबोरेशन की ही बात की, इसीलिए मैम आपके स्कूल में काउंसलर तो होंगे ना? नहीं है मैम, मेरे स्कूल में नहीं है मैम काउंसलर। मैक्सिमम सभी स्कूल में काउंसलर्स तो अब तो दिए हैं। मेरे स्कूल में नहीं है मैम। मैडम, हमारा स्कूल टेम्परेरी साइट पे है, वहाँ काउंसलर नहीं है मैडम। ओके ओके मैम। हमारे पास भी नहीं है मैम। नहीं मैम, एक्चुअली ये पोस्ट हमारे यहाँ टेम्प्रोरी होती है ना, कॉन्ट्रैक्ट पे होती है, तो एक्चुअली ये लोग 8 to 9 मंथ ही रख पाते हैं। जब भी सेशन मोर देन हाफ फिनिश्ड हो जाता है तो वो अपॉइंट होते हैं। समिति जो है, That's मैं why. ये नहीं कहती कि समिति के जो स्कूल्स है ना मैडम, दे आर वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे बच्चा जो है ना डिसीजन लेना सीख जाता है बहुत छोटी एज में, जो कि एक मदर के पास रह के बच्चा कभी नहीं सीख पाता, और बहुत सारी स्किल्स सीख जाता है ना। तो ये बच्चे के लिए इट इज गुड, बट टीचर्स के लिए बहुत हेक्टिक है। आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन ट्रूली अंडरस्टैंड जो आप बात कर रही है अपने प्रोफाइल की, और मैम ने भी जैसे बोला कि काउंसलर्स है या नहीं है, बट अगर अभी आप देखें जो हमने पूरा अभी वर्किंग मॉडल डिस्कस किया था एक वेलनेस ऑफ अ चाइल्ड में, हमने तभी कहा था कि पीयर एजुकेटर के साथ में टीचर और काउंसलर, ये सब नोडल टीचर्स वगैरह साथ में काम करती हैं, एंड दैट्स हाउ इट बिकम्स मोर इफेक्टिव। इंडिविजुअली एक पर्सन के लिए करना और एक कोलैबोरेटिव टीम में काम करना। मैम, टीचर तो अपना सब्जेक्ट तो भूल ही जाता है, एक तो इन सारे अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म करते हुए अपना सब्जेक्ट तो हम लोग जैसे जो भी हमारा प्रीवियस नॉलेज है उसके बिहाफ पे ही कर पाते हैं क्लास को, अदरवाइज सेल्फ स्टडी के लिए, लेक्चर प्रिपरेशन के लिए तो देयर इज नो टाइम। मैडम, मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ हमारे रूटीन क्या होता है। हम सुबह 7, 7:15 बजे चले जाते हैं स्कूल, ठीक है। मैम, उससे पहले मॉर्निंग का भी हाँ, उसके 1:30-2 बजे तक हम स्कूल में रहते हैं। 5:30 से उसके बाद फिर हमारी रिमीडियल होती है 3 बजे से 4:30 बजे तक। उसके बाद फिर हमारी सुपरवाइज होती है, फिर गेम्स होती हैं उसके बीच में, और मॉर्निंग में सबसे पहले पीटी होती है। एक दिन में एक टीचर एमओडी होता है, मतलब, और एमओडी ड्यूटी 1 महीने में 2 बार तो आती है। और अगर आप एमओडी हो तो आप सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक आप कंटिन्यू स्कूल में ही हो, आप कहीं नहीं जा सकते। एक एक बच्चे की गिनती करना वो आपकी जिम्मेदारी है, पूरा दिन गिनती करते हैं। आप ये लगाओ मैडम, वार्डन होना हमारे लिए और इन सब के साथ मैम 5 to 6 क्लास भी हमें असाइन है, वो क्लास भी परफॉर्म करना, वो भी नहीं छूटनी चाहिए। अगर एक भी बच्चा हमारे, जैसे सपोज हमारे लाइब्रेरी में एक क्लास आई और मान लो उसमें 40 बच्चे हैं, और मैंने काउंट किए कि आज 39 है, 40वां किधर गया, अब 40वां किधर गया हम सारे ढूंढ रहे हैं। 4 क्लास के बच्चे गए, मैं गई, फिर हाउस मास्टर को पकड़ा, एएचएम को पकड़ा, सब उस बच्चे को ढूंढ रहे हैं, बच्चा किधर है। चाहे बच्चा वॉशरूम में हो, सारे लाइन बना के खड़े हो जाएंगे वॉशरूम के बाहर। 19 तारीख को मानवी ठाकुर Ma'am, I think, ma'am, all these concerns, I think I can understand what all you are trying to express, but the coordinators and your department heads would be able to. But it is a request to you. क्या नाम है? तेंजिल Definitely, ma'am, हम अपने end से ये definitely एक feedback जरूर रख देंगे।
हमारे पास द्वितीय take SSV this forward. But apart from this, ma'am, any other issues अब 25 वाला बताइए सर। children, if you have, Apart then from we this, can it was a discuss nice because session. the session will get over in another 4 तो minutes. उसको कंप्लीट करा लीजिए क्योंकि फिर साइन नहीं हो पाएंगे ना दूसरा सर के। ये देखिए अधूरा है, Anything related फोटो to मैंने our लगा topic, रखी है। ma'am? Peer education and हाँ तो आज concerns कंप्लीट करा adolescent के आप mental शाम तक health मुझे दे issues. दीजिए गेम्स नहीं लंच शुरू लंच में। फील्ड में अच्छा ठीक है। थोड़ा सा टाइम तो लगता है Anything हाँ that वो you would तो like to है पर discuss further, or क्या ना साइन कराना because होगा we फिर have सर to फिर मुझे। end the session in another 4 minutes. So any other issues or about children or peer education, anything that we would like to express or ask, the platform is open for that now. And आपका feedback we will try our level best to सर forward. मुझे वो लेटर दीजिएगा साक्षरता वाला। I think there are no questions. हाँ So और जो thank you शपथ so था much. ना पंच प्राण कल वाला जो मैंने भेजा था उसको yuva.gov.com पे अपलोड करना। So we can. Thank you so much for attending the session for today. I hope it was useful, and to some extent we have been able to help you and guide you with the peer education program. Anybody who would like to say or give their feedback or ask? नहीं स्कूल में तो नहीं होंगी इस समय। अभी नहीं लेकिन इश्तवार नहीं है ना। हाँ हाँ। I'm getting a lot of thanks from everyone. So thank you so much for attending the session, and we hope and we wish you all the best with your duties and taking care of children, and any other help that you need. You can give us your feedbacks on the links that has been provided in the chat box. Please do share your feedback. It's really helpful. And all the best to all the teachers, and really hats off to all the duties that you have been taking care, and you are taking care of the children so beautifully at your end, like your own kids. So yeah, thank you so much for the session. Have a nice day, take care, and a very very warm thankful from our entire team. Thank you so much, ma'am. Thank you. So much, ma'am. Thank you. Take care. Thank you. Bye. Thank you, ma'am. Welcome. Bye bye. Take Thank you, care. ma'am. Thank you ma'am. Welcome. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, team from Expressions India. On the behalf of NLI Amritsar, I wish you regard. So thank you so much for giving this presentation. Now all the participants are requested to please fill the feedback form that has been provided to you in the chat box as well as the WhatsApp group that has been provided to you. Please fill the feedback form that is compulsory for your attendance. Please fill the feedback form. After that, you can leave, and that's it. I hope the training was fruitful. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you. Have a nice day, everyone. Take care. Bye bye.